So, hello students, welcome to OTS. So, since the MNS, the first round results has been declared, and those who have selected might have received an email, right, regarding the next round, that is, general intelligence, English, and PAT round, etc., including the medical test. Now, there are few problems associated with it, right? You can see that it's very difficult to respond each and every WhatsApp or Telegram message. So that's why I thought that we should sum up complete idea in one single video, whatever questions you have. There were some candidates who got the call, had questions regarding the documents. I'll explain. Some candidates who were actually the genuine MNS candidate, because this modification in the exam pattern, that is, it is based on NEET, was announced a bit later. So that means they were not in the complete full-fledged preparation mode as such. राइट सो कुछ बच्चे जो वो थे जो जनरल इंटेलिजेंस वगैरह पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे और बाद में डिक्लेयर हुआ कि नीट एग्ज़ाम के बेसिस पे होगा, तो उनके साथ थोड़ा बहुत बायस तो था ही, बट स्टिल इट्स लाइफ, थिंग्स कीप्स ऑन गोइंग, राइट. सो यू ट्राई टू प्रिपेयर योर बेस्ट इन द लास्ट 3-4 months और 5 months, राइट. जो भी आपने किया अच्छा ही है, नथिंग इज़ बैड एज सच. आपने कोशिश करी, दैट्स इम्पॉर्टेंट, राइट. Regarding the first round cutoff based on NEET score or not, what is the NEET score tentative cutoff, because जो ऑफिशियल आपके पास मेल आई है या डॉक्यूमेंट जो अपलोडेड है, इट्स नॉट मेंशन्ड, राइट. सो बेस्ड ऑन द क्राउड, राइट, स्टूडेंट्स के फीडबैक पे दिस कम, वी एक्चुअली कम टू कंक्लूड, राइट. सो वी हैड फ्यू स्टूडेंट्स जिसके मान लो कि 545 572 भी हैं, ऑफ कोर्स दे हैड गॉट द कॉल, राइट. एंड इनफैक्ट जिसके 427 है उसको भी कॉल आई है. There was one candidate who got 396. She didn't get the call, right? So I didn't have any candidate, और मैं ऐसे किसी candidate को नहीं जान रहा जिसके exactly 400 हो. That's why I cannot 100% specific that कि 400 ही कट ऑफ है. But I know कि 396 वाले को confirmation नहीं आई है. So that means of course the cutoff is 396 plus. The another candidate, आज ही सुबह की से बात हुई मेरी, तो she was on 387. Right, she also said that कि उसकी कट ऑफ नहीं है, तो I knew that 396 was the band mark, and so overall I can sum up that yes, it should be approximately 398 plus, or maybe जैसे आप डिस्कस कर रहे हैं कि 400, it's okay, because you said that 412 you have got the call. That means you can sum up that 400 was more or less a landmark, a boundary line from where the candidates has been called. राइट. तो सीट्स भी कम ही होती है, इट्स मोर और लेस एज पार विद द एनडीए एग्जाम वेयर 450 के आसपास सीट्स होती है. एंड थिंग्स हैव चेंज इन द लास्ट 2 years बिकॉज ऑफ अवेयरनेस ऑफ द कैंडिडेट्स. नाउ इट इज मेनी कैंडिडेट्स नो अबाउट दिस एग्जाम. इफ somebody asked me 4 years back, I think only few candidates were aware about this, राइट. इवन हम अपने जो नीट वाला बैच है उसमें ये चीज़ कराते भी नहीं थे शायद उस टाइम. They used to prepare for PGI nursing, AIMS nursing, the government college nursing, etc. जो बच्चे थोड़े moderate होते थे पढ़ने में, उनको उनका फॉर्म भरवाते थे. But nowadays, now if it is 400 plus, and I know at least 13 candidates जिनके 500 plus and they have applied, right? And they are going to get private medical college, but they are not taking this. वो मिल सकता है, बट वो कोशिश में है कि अगर एमएनएस कन्वर्ट हो जाए तो हम प्राइवेट कॉलेज के एमबीबीएस नहीं लेंगे. सो नाउ दिस एक्चुअली गिव मी एन आइडिया, द चार्म फॉर द एमएनएस हैज एक्चुअली इनहेंसली एक्सपोनेंशियली इंक्रीज्ड. बहुत ज़्यादा आजकल इंक्रीज हो गया है. मे बी द रीजन बीइंग द परमानेंट कमीशन, more or less a secure, charm, respectful career, apart from the different the kind of salary, incentive, accommodation you get, सब कुछ तो मिलता ही है. इट्स वेरी गुड टू स्टार्ट विथ, राइट. जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो बहुत अच्छा है यहाँ पे. इनफैक्ट एडवेंचरस वगैरह तो चलो होता ही है, यू नो दिस. बट येस, आफ्टर दिस परमानेंट कमीशन, दिस जॉब इज़ वन ऑफ द मोस्ट शॉर्ट आफ्टर. काफ़ी लोग एस्पायर कर रहे हैं. आई एम श्योर दैट कि 100 out of 100 कैंडिडेट जिसको शायद प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज में BDS भी मिलेगी, वो मिलिट्री नर्सिंग सर्विस लेना चाहेगा अगर उसको मिले तो. मे बी आई एम रॉन्ग, बट दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग ऑन द बेस्ड ऑफ द फीडबैक which I have received from our batch and the candidates who are in contact with me, right. So अपने अपने परसेप्शन सबके होते हैं. आपकी इच्छा होगी नहीं BDS ही करना है तो आप करेंगे, वो अलग बात है, right. So this actually reflects the huge charm. People are choosing MNS over BDS and private MBBS. प्राइवेट में फीस बहुत ज़्यादा होती है and it's actually too high. It's not only high, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस 3-4 लाख साल की होगी, मतलब जो प्राइवेट भी होगा बहुत अच्छा, बट इसमें 4 लाख में कुछ बनता नहीं है. MBBS में प्रॉब्लम ये है.
right? Now the first thing you need to do, if you receive the mail, you have to reply. Now I think this point was self explanatory, but still many candidates are confused. You need to revert back to this email id plan.plan15@nic.in. आपने इस मेल पे ना आपको लिख के भेजना, हाय माय रेफरेंस नंबर और रोल नंबर इज दिस, आई हैव गॉट कॉल फॉर द एमएनएस, आई विल बी अटेंडिंग द द मेडिकल बोर्ड और द इंटरव्यू बोर्ड ऑन दिस डेट. बस इतना ही लिख के भेजना है ताकि उनको लग जाए कितने बच्चे आ रहे हैं. बिकॉज प्रॉब्लम ये है कि जितने सारे बच्चों को उन्होंने बुलाया है, तो नाउ द रिजल्ट्स हैज बीन मोर और लेस डिक्लेयर्ड ऑन 6th, अब 7th को आप मॉर्निंग मान ले, राइट? तो 10th को अगर बुलाया तो दोज हु आर लिविंग इन फार डिस्टेंट रीजन, लेट्स सपोज साउथ में कोई कहाँ है, और किसी का पंजाब में जैसे कि एमबीबीएस की काउंसलिंग भी स्टार्ट है, देयर विल बी मेनी कैंडिडेट जो शायद स्किप कर जाएंगे. अब मान लो 13th से स्टार्ट है, 14th से, एंड जो कैंडिडेट दिल्ली जाएंगे वो 1-2 दिन के लिए जो जाएंगे नहीं, बिकॉज आपका वो रिटन टेस्ट होना है, इंटरव्यू होना है और मेडिकल होना है, तो बहुत सारे कैंडिडेट में टाइम लगता है. इट कैन बी 2 or 3 day प्रोसेस एज वेल, डिपेंड्स अपॉन द कैंडिडेट्स हाउ मेनी अपीयर्ड ऑन दैट डे. सो मैं मान के चल रहा हूँ कि अप्रॉक्सीमेटली जो अटेंडेंस है वो 100% तो नहीं होगी, बिकॉज कुछ कैंडिडेट स्किप जरूर करेंगे क्योंकि अलग अलग स्टेट की काउंसलिंग है, और इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज ऑल द स्टेट काउंसलिंग. आप स्टेट अलग अलग बोर्ड को आप बच्चा मेल करता रहे कि मेरी काउंसलिंग है जी एमएनएस की, आप मेरा डेट चेंज कर दो. इट विल नॉट बी पॉसिबल, आई थिंक, राइट? सो अल्टीमेटली कुछ कैंडिडेट्स तो मिस करेंगे यहाँ पे. सो दैट्स व्हाट आई सेड, दैट कि जैसे कुछ बच्चों के नीट में लेट सपोज कि 410-12 वाले भी हैं, आप अटेंड जरूर करें अगर आप कर सकते हैं, राइट? बिकॉज देर आर चांसेस दैट मेनी विल नॉट बी अटेंडिंग द काउंसलिंग ड्यू टू देयर स्टेट एमबीबीएस काउंसलिंग और XYZ रीजंस, कि दूर भी है तो एकाएक 2-3 दिन में टिकट बनाना, सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करना, इट्स ए बिग डील. वो अपने आप में एक मेंटल हैरासमेंट. सो दिस इज समथिंग विच आई फील दैट द आर्मी बोर्ड हैज टू कंसिडर. ये उन्होंने गलत किया है कि आप 4 दिन पहले मेल कर दो कि आपको आना है जी. दिस इज समथिंग फिशी. ये आई डोंट ट्रस्ट दिस एक्चुअली, ये मुझे डाउट लगता है, राइट? कि आपको कम से कम 10-15 दिन का बैंडविड्थ देना चाहिए ताकि बच्चा सारा डॉक्यूमेंट बनाएगा. लेट सपोज समवन हैज द गैप सर्टिफिकेट, आपने गैप सर्टिफिकेट लिखा है, तो गैप सर्टिफिकेट आप कोर्ट से बनाते हैं, 100 रुपये खर्चा होगा. यू हैव टू मेंशन दैट कि ड्यूरिंग दिस पीरियड आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया, बस यही लिखना होता है. नोटरी से अटेस्ट कर लेगा, उस 70-80-100 रुपये लेता है, अटेस्ट करके आपको दे देता है. आप वो आपकी टेंशन बहुत ज़्यादा नहीं है, बट इन सबको इकट्ठा करना है. स्कूल से माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेना, एनसीसी सर्टिफिकेट हो सकता है आपके पास हो, ना भी हो कोई दिक्कत नहीं. इट्स नॉट मैंडेटरी, ऐसा कुछ नहीं है कि डीसीसी वाले ही जाएंगे, ऐसा मैंडेटरी नहीं है, राइट? बट फिर भी 3 दिन में कहीं एक जगह से मान लो कोई अगर 500 किलोमीटर दूर है तो आना जाना प्लान करने में टाइम लगता है. इट्स अ मेंटल हैरेसमेंट मोर और लेस, राइट? तो दे शुड हैव गिवन मोर टाइम. नाउ द सेकंड थिंग कि लेट्स सपोज सर इसमें से एक आध डॉक्यूमेंट अभी मेरे पास नहीं है और मुझे अर्जेंटली जाना है, तो मैं क्या करूँ? आप जाइए ज़रूर, राइट? आई वुड रादर एडवाइस यू कि अगर एक आध डॉक्यूमेंट नहीं भी है फिलहाल आपके, जैसे कुछ डोमिसाइल नहीं बन पा रहा है, आपने अप्लाई किया डोमिसाइल के लिए और 2-3 दिन का प्रोसीजर लग रहा है, छुट्टी होगी, कुछ होगा, आप जाइए जरूर, आधार कार्ड लेके जाइए. दैट्स एक्ट्स एज ए डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डोंट वरी, एक्ट दैट कैन एक्ट. अच्छा, इसमें से कोई डॉक्यूमेंट आपके पास कम भी है जो आप रीजन लिख सकते हैं कि हाँ इस कारण से मैंने अभी नहीं लाया हूँ, तो आप ना वहाँ जाएं. दे विल गिव यू लेटर ऑन सम टाइम टू सबमिट. जैसे ये एसएसबीज में भी होता है, बहुत सारे एसएसबी हैं जो बच्चे अभी माइग्रेशन स्कूल में नहीं है तो आप रिटर्न में दे देते हैं क्या स्कूल हैज़ नॉट रिसीव्ड, आई विल सबमिट बाय दिस डेट, राइट? एक डेट आप रिटर्न आउट अंडरटेकिंग देते हैं, दे विल एग्री. दे कैनॉट थ्रो यू आउट ऑफ दिस द कंप्लीट प्रोसीजर. सो डोंट वरी, अगर आपने कोशिश करी है, कोई डॉक्यूमेंट आपके पास अभी तक नहीं आ पाया है, तो आप उसका वैलिड रीजन लिख करके वहाँ दे देंगे. ऐसा कुछ नहीं है कि वो आपको भगा देंगे, राइट? सो इसको लेकर के आप परेशान नहीं होना है. नाउ द बिगेस्ट थिंग, द रोल ऑफ नीट स्कोर. सो अगर हम इस पूरे चीज़ को एनालाइज करें, यू कैन सी दैट दिस एमएनएस एग्जाम हैज कंप्लीटली शिफ्टेड अवे फ्रॉम दैट जनरल इंटेलिजेंस एक्सेट्रा, राइट? जो पहले आप 6 साल 1 साल 2 साल पहले 4 साल पहले आप सारा उसी चीज़ की तैयारी करते थे. नाउ इट्स कंप्लीटली डिफरेंट बॉल गेम, बिकॉज आपकी कॉल तो नीट के स्कोर पे आएगी और नीट में अच्छा करना पड़ेगा. नाउ इट्स नॉट कंप्लीटली डिपेंडिंग अपॉन योर बायोलॉजी विच यू क्रैम एंड परफॉर्म, राइट? सो अल्टीमेटली यू हैव टू इंश्योर दैट आर यू अबव 430 450 और नॉट. और नेक्स्ट ईयर की बात करें अगर नेक्स्ट से, तो आप मान के चलिए इस बार 400 अगर बच्चों को पता लगने लग गया तो 450 जाने में बहुत देर नहीं लगती, बिकॉज यू कैन नॉट अवॉइड नाउ आप कंप्लीटली एमएनएस के एस्पिरेंट आप नहीं रहे जो पहले हुआ करता था. अब आपको नीट की तैयारी करनी पड़ेगी चाहे जैसे भी. आप नीट के लिए करेंगे तो ही एमएनएस के लिए आप एलिजिबल हो पाएंगे. अब जो क्राउड है, जो IQ लेवल है एक्चुअली इस बार का, दैट विल बी क्वाइट द डिफरेंट अपार्ट. द बैच विल बी अ डिफरेंट अपार्ट. These candidates who are appearing for this MNS second round,
आर नॉट लेस देन दिस MBBS कैंडिडेट्स जो कि 550 वाले हैं, बहुत कोई अंतर है नहीं, बिकॉज दोनों सेम लेवल पे हैं. सो क्वालिटी ऑफ द एस्पिरेंट्स हैज एक्चुअली इंक्रीज. दिस इज वेयर आई एग्री. यस, जेन्यून कंटेंडर, द क्वालिटी एस्पिरेंट्स जिन्होंने 1.5 साल मेहनत करी है तभी तो 500 नंबर लेकर के हैं. इफ इट्स नॉट ईजी. हालांकि 600 वाले भी भारत में बहुत है, आप देख रहे हैं 700 वाले भी हैं. बट येस, इफ यू आर 500 दैट मीन्स कि आपने ऑनेस्टली मेहनत करी है, एंड वी हैव टू रिस्पेक्ट द टैलेंट, राइट. So that's the good thing actually about this. But yes, it was quite unfair. I do agree with this कि आप 20 साल में अनाउंस कर दे कि इसके बेसिस पे होगा. बच्चों को पहले बताना चाहिए, ऐसे ना फिर ये साल बर्बाद होता है. उनको पता होना चाहिए कि क्या करना है. रैंडम जो अनाउंसमेंट है ना, ये चीज़ें गलत है, राइट. जैसे कि अभी आप 7 तारीख को अनाउंस करेंगे कि 11 या 10 को आपको आना है, तो दिस इज कम्प्लीटली एब्सर्ड, राइट. ये आई ऑलवेज से दिस इज समथिंग फिशी, कुछ प्री प्लान लगता है, विच गिव्स अ सेंस ऑफ द डिसगाइजनेस, तो जो कि गलत है. ट्रस्ट शुड नॉट, ट्रस्ट कम नहीं होना चाहिए, बट इस टाइप की एक्टिविटी से ट्रस्ट कम होता है, इसमें कोई डाउट नहीं, राइट. सो ऑल दोस डॉक्यूमेंट, बेसिक डॉक्यूमेंट 10 12 द TC, नीट स्कोर. आप नीट स्कोर जरूर ले जाएं. नीट का जो आपका एडमिट कार्ड है वो लेके जाएं, रोल नंबर वगैरह लिखा होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर, दैट्स इंपॉर्टेंट. अब जो एक सर्विसमैन कैंडिडेट है, मान लो आपके पेरेंट्स मिलिट्री में है, तो एक डिपेंडेंट कार्ड बोलता है, वो आपके पेरेंट्स के पास होगा, फादर के पास होगा, या मदर होंगी तो मदर के पास होगा. वो बनवाने की जरूरत नहीं, आप उसका जेरोक्स ले लेंगे तो आपका काम चल जाता है. सो दैट्स व्हाई टू सम अप, दिस MNS इज इज नाउ अ डिफरेंट बॉल गेम. अगर आप मान लो कोई बच्चा है आपके जूनियर्स है, आपके नोन है, जो नेक्स्ट ईयर करना चाहते हैं, आप उनको ये इंश्योर करें कि ट्राई टू प्रिपेयर फॉर नीट वेल. दैट विल ओनली गिव यू a good chance to appear for the MNS or to be eligible for MNS, at least to be considered, right. अगर आप 300 350 में हैं तो you are already out of race by this scenario, because NTA जब से पेपर करा रही है तो नीट का पेपर आसान होता है. 500-550 नंबर आजकल बच्चों के आ जाते हैं. 300 इन बायो इज एन एवरेज स्कोर. अर्लियर, आज से 2015 में बात करें, जो 10th रैंकर था नीट का, जिसको उस टाइम AIPMT था, उसके 300 नंबर थे. आई हैव सीन द 308 स्कोर, राइट. आई हैव सीन द स्कोर कार्ड फ्रॉम चंडीगढ़, राइट. और आज के डेट में 300 इज अ कॉमन स्कोर इन बायो, राइट. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन नॉट अवॉइड दैट केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, राइट. एटलीस्ट आपको 80 तो करना पड़ेगा मिनिमम, ताकि आप 450 क्रॉस करें. पेपर आसान है, आप सिलेबस पूरा कवर करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो दैट्स व्हाट द समरी वाज. आई होप, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम, राइट. सो अंजलि, अनिशा एंड द सेकेंड वन गुरमन्नत कौर, आप जिनको भी आपके ये कॉल्स आए हैं, फॉर ऑल दोज कैंडिडेट्स हु आर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज congratulations to all of you and stay prepared for the next round, right. So although there is no time gap, but yes, जितना आता है आप confidently लिख के आइए. There is nothing to hurry up, all will be well. Thank you, good luck.